जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुनातीरवनचारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुनातीरवनचारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुनातीरवनचारी जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। Hare Krishna. First of all, I must thank you all for giving a generous donation for Jayapataka Swami Guru Maharaj and Radha Govind Maharaj. Thank you very much. May Krishna bless you and purify your all the wealth that you have shared with us. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nasuprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtuki. So, 3.20.2 Chata Mahabhagavataha Krishnayeshe Kantikaha Surhe Yastyajyagram Krishne Shapatyam Adhavaniti. Chata Mahabhagavataha Krishnayeshe Kantika Surhe Yatyajyagraha Krishne Sapatyam Avadhaniti. Chata Mahabhagavataha Krishnayeshe Kantika Surhe Yatyajyagraha Krishne Sapatyam Avadhiniti. What meaning? Shata Vidura Mahabhagavataha, a great devotee of the Lord, Krishna Sya, Lord Krishna, Ekantikaha, unalloyed devotee, Surhet, intimate friends, Yaha, he who, Tatajya, abandoned, Agrajam, his elder brother, King Dhritarashtra, Krishna, towards Krishna, Sa Apatyam, along with his 100 sons. Aga one offender, iti thus. Translation purport by His Divine Grace, Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Saunaka Rishi inquired, Vidura, who was a great devotee and friend of Lord Krishna, and who gave up the company of his elder brother because the latter, along with his sons, played trick against the desire of the Lord. Purport. This incident referred to here is that Vidura left the protection of his elder brother Dhritarashtra. When traveling everywhere to sacred places and met Maitreya at Haridwar. Haridwar means, Dwar means a door. Hari means Krishna. So, where you find the door to reach Krishna, Haridwar. Saunaka Rishi here inquired about the topics of conversation between Maitreya Rishi and Vidura. Vidura's qualification
was that he was not only a friend of the Lord, but also a great devotee. When Krishna tried to stop the war and mitigate the misunderstanding between the cousin brothers, they refused to accept his counsel. Therefore, Kshata or Vidura was unsatisfied with them, and he left the palace. As a devotee, Vidura showed by example that anywhere that Krishna is not honored is a place unfit for human habitation. My God. A devotee may be tolerant regarding his own interest, but he should not be tolerant when there is a misunderstanding, no misbehavior toward the Lord or the Lord's devotee. Here, the word Agavan is very significant, for it indicates that the Kauravas, Dhritarashtra's sons, lost the war because of being sinful in disobeying the instruction of Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjan Salakaya Chakshmritameenam Tasmai Sri Guruve Namah. Sri Chaitanya Manovistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadadi Supadantikam Bandeham Sri Guru Shruta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamja Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Pitantam Sajivam Sadhvedam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhan Vitamcha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Taptikasana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishvana Sute Devi Pranamami Hari Priye Vangsha Kalpataru Vaishya Kripa Sindhuve Vacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Vishnu Vishnu Bhutale Srimati Jayapataka Swaminiti Namane Namacharya Padaya Nitaya Kripa Pradayane Gorgasa Madaya Nagar Gram Tarane Namah Om Vishnu Padaya Vishnu Vishnu Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Gaurvani Parcharani Nirvishesha Shunyavadi Pashyad Deshatarane Jai Srila Prabhupada Chata Mahabhagavataha Krishna se Kantika Surhet Yasadya Jagraha Krishna Shapatyam Avadinitihi. So, the beautiful narration, Shaunaka, being the disciple or recipient of the Srimad Bhagavatam, is just asking question just because of one reason. So that Sota could understand, we are attentively listening to him. Otherwise, so many times, you may have your own experience when you are hearing Harikatha, you may be sitting in the class, but your mind is not there. You are thinking, manipulating, devising some program, what I do hereafter. But here, Saunaka is asking question because he is attentively listening. And he has confirmed here today, Chata Mahabhagavataha. He is the greatest devotee of the Lord. He is a friend to the Lord. Not only that, Krishna also accepts him as a friend. I may call anybody my friend. What difference does it make? But if that fellow says, yes, he is my friend, so Krishna has confirmed, Suhrada, he is my friend. He visited Vidurani. Prabhuji, in Hindi, please. Hindi. Okay. All right. तो हम बता रहे थे कि सौनक ऋषि ने कंफर्म किया कि विदुरा महाभागवत। महाभागवत का मतलब है जो भगवान श्री कृष्ण के परायण हो। प्रभुपाद जी अनुवादक कमेटी में लिखते हैं यहां कि जैसे ही कौरवों ने भगवान की मैत्री का प्रस्ताव ठुकराया, आया, जैसे ही भगवान की बात नहीं मानी, उनकी हार, उनका विनाश उसी दिन हो गया था।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का नाक क्षय होना होता है तो समय भी ऐसा एक्ट करता है, और हम कह सकते हैं बलादिव नियोजितः, मुझे नहीं मालूम कैसे हो गया। ये इसलिए हो गया, काम ऐश क्रोध ऐश, हमारे अंदर काम है, हमारे अंदर क्रोध है। काम होना चाहिए, क्रोध होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अपने शरीर को चलाने के लिए। भाई इतने काम, खाना खाना है, पिलग्रिम में जाना है, ये काम। लेकिन क्या बोलते हैं कि सेंसेस को सेटिस्फाई करना है, सेंसेस को ग्रेटिफाई नहीं करना है। तो जैसे ही इन्होंने मैत्री का प्रस्ताव ठुकराया, ये कथा हम पहले पढ़ चुके हैं, तो विदुर महाराज ने अपना धनुष और बाण पैलेस के गेट पर रखा और चल पड़े। जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। ये धन यौवन पुत्र परिजन, हिते के आछि प्रतीति रे, कमल दल जल जीवन तल मल, भजाहूँ हरि पद नीति रे। उस जगह रहने का क्या फायदा जहां भगवान कृष्ण के गुणगान न हो। और जो महाभागवत है, यह है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल में क्या है, वो नहीं बोलते हैं जब तक बोलने के लिए नहीं कहा जाए। जब किसी को रिक्वेस्ट करे कि आप अपना ओपिनियन बताए, तो बताते हैं, वो भी शास्त्रों के अनुकूल, शास्त्रों के अनुसार। दूसरे में वो लोग हमेशा जो है आत्माराम है, किसी चीज को पाने की आवश्यकता नहीं है। जो आता है यद्रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्व तीतो विमत्सर, जो अपने आप आया। एक बार गुरु महाराज से किसने प्रश्न किया कि महाराज त्याग करने की हमें नौकरी छोड़ देनी चाहिए क्या? गुरु महाराज ने कहा, कहां लिखा शास्त्र में नौकरी छोड़ दो? जो आता है उसको आने दो, उसका यूटिलाइजेशन करो। जो हमारे प्रारब्ध हैं, तुम नौकरी करो तो भी मिलेगा, नौकरी ना करो तो भी मिलेगा। आप प्रारब्ध को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता क्या है, आप उसको यूटिलाइज करें। हमारी जितनी सेंसेस है ना, ये सब ऑटो मोड में है। जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी होती है ना, ऑटो मोड में है। आंखें अपने आप काम करती हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है। नाक कान सब कुछ अपने आप काम करते हैं, ऑटोमेटिक है। लेकिन जो हमारा बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, वो ऑटो मोड में नहीं है, उसको डेवलप करना पड़ता है। तो भगवान ने कहा, देखिए मैंने सारे सेंसेस ऑटो मोड में डाल दिए। अब ऑटो मोड में जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी तो ऑटो मोड में है, लेकिन आपके मतलब आप एक्सीलरेटर कितना दबाएं, 40 पे दबाएं, 80 पे दबाएं, 100 पे दबाएं, 200 पे दबाएं, ये आपका है। तो ये हमारी बुद्धिमत्ता है, जो हमारा ये ज्ञान है। भगवान ने कहा ये ऑटो मोड में नहीं है, ये तुम अर्जित करो। सारा काम मैं ही करूंगा तो तुम क्या करोगे? तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, जो है उनके पास वो तो आएगा ही आएगा, प्रारब्ध आएंगे ही आएंगे। आप कभी नहीं चाहते हैं बुखार आए, जर आए, दुख आए, आते हैं। उसी प्रकार आपने क्या सोचा आपको इतना सुख मिलेगा? कभी आपने सोचा आप भागवत में इतना आनंद लेंगे? अपने आप आए ना। तो जो आने वो आएगा, उसका सदुपयोग करना है, बस इतनी सी बात है। हर आदमी को भक्ति करने का मौका मिलता है, अब यह है कि उसका सदुपयोग कैसे करें। बहुत सारे लोग क्लास में जाके स्वेटर बुनते रहते हैं अपने नवासों के लिए। क्या किया जा सकता है? तो ये बुद्धिमत्ता हमने डेवलप करनी है। हम भागवतम पढ़ने का हमें मौका मिला, अब हमें कितना पढ़ें? अच्छा छोड़ो पढ़ना, कितना समझें, छोड़ो समझना, अपने जीवन में कितना हम उतार पाए, ये हमारे ऊपर है। भगवान इसको ऑटो मोड में नहीं डाला। तो जैसे ही दुर्योधन आदि ने इनके साथ ट्रिक किया कि उनको गाली दी, और विदुर महाराज को गाली देने का बुरा नहीं लगा। उन्होंने मौका लिया कि हाँ, अब मैं इस बहाने घर छोड़ करके पिलग्रिमेज में जा सकता हूं। बहाना, भक्ति का बहाना छोड़ के चले आए।
और इतने वो खुश वहां नहीं थे जितने वो जंगल में खुश रहे। जंगल में मंगल हुआ, बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे तीर्थ मिले, बहुत सारे उन्होंने विष्णु जो टेम्पल थे उनका दर्शन किया, जो कुछ जर्जर हो चुके थे, कोई भी पूजा की अवस्था में थे। वहां से लोगों से मिले, भगवान के बारे में जाना, और आखिर में उनको उद्धव जी मिले। और उद्धव जी ने कहा कि भाई देखिए, मैं तो हतोत्साहित हूं, तुम मैत्री से जाके पूछो, तुम्हारे लिए भगवान ने वहां कुछ रखा हुआ है, मैसेज रखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार भगवान ने कहा तुम सबको, अरे कतर चले जाओ, कतर जाके तुमको भक्ति दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब आप भक्ति ना ले तो हम क्या कर सकते हैं? भगवान ने कह दिया, भाई ये बुद्धिमत्ता आपको लगानी है बस उनको। तो ट्रिक मिली, ट्रिक हो गया बेचारा। हर आदमी जो ट्रिक करता रहता। और वो क्या करते हैं, अगर उनके पास कोई मिजरी आई, कोई मिजरी, कोई परेशानी आएगी, तो कहते हैं मेरा प्रसाद है। भगवान का ये मतलब थोड़ी है कि स्वीटी मिले, खट्टा भी मिल सकता है, तीखा भी मिल सकता है, नमकीन भी मिल सकता है, प्रसाद है। प्रसाद को प्रसाद के तरह पाना और उसको एंजॉय करना। लेकिन हम क्या कहते हैं, प्रसाद हाथ में। एक बार हमारे एक दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप इस्कॉन वाले ठीक हैं, लेकिन आप परंपरा को फॉलो नहीं करते। मैंने कहा क्या परंपरा भैया? बोला नहीं, बस मैंने देखा परंपरा फॉलो नहीं करते। मैंने क्या बोला, मैं भारत के बड़े बड़े मंदिरों में गया, वहां प्रसाद मिलता है हाथ पे और तुम प्लेट पे देते हो। प्रसाद हाथ में होना चाहिए प्रभु। मैंने कहा नहीं, हम प्रसाद नहीं देते, हम महाप्रसाद देते हैं, दबा के कहो। तो उनको समझता है कि हम जो है शास्त्रों के विपरीत जा रहे हैं, हमारी जो संस्कृति से विपरीत जा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद ने क्या कहा कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। अब वो छोटा सा प्रसाद मिलेगा, वो तो प्रसाद है, अरे हम खिलाते हैं महाप्रसाद। तो इस प्रकार वो क्या कहते हैं, जो भी उनके जीवन में कष्ट आए, दुख आए, तो बोलते हैं तो भगवान का प्रसाद है। और उनको ये भी मालूम है, न सुख हमेशा रहेगा, न दुख हमेशा रहेगा, लेकिन भक्ति हमेशा रहेगी। ये शरीर हो तो भी, शरीर ना भी हो तो भी आत्मा से भक्ति होती है। इसलिए वो आत्मा रामश्चतु मुनेह, जितने मुनिगण हैं सब अपने आत्मा राम है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। दूसरे में उनकी जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जो भी एक्टिविटीज करेंगे, हरितोषणम, जो मैं काम कर रहा हूं, करने जा रहा हूं, क्या इसमें भगवान को संतुष्टि मिलेगी? अब कैसे मान लो भगवान को संतुष्टि मिलेगी, नहीं मिलेगी? भाई जब आपने शास्त्र पढ़ा तो आपको पता चलेगा ना भगवान को क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तभी तो पता चलेगा। लेकिन अब आपने शास्त्र न पढ़े हो, गुरुजनों से ज्ञान ना लिया हो, तब तुम्हें क्या मालूम भगवान को क्या अच्छा है, क्या बुरा होता है? एक दिन किसने हमसे आगमन कर दिया कि सब चीज भगवान को नहीं चढ़ाई जा सकती ना प्रभु जी। मैंने क्यों चढ़ाई जा सकती? बोला देखिए, अगर हम बाजार से दवाई लेके आए तो, मैंने कहा भगवान को खिलाओ ना। भगवान को कौन दवाई खिलाता है? मैंने कहा तुम खिलाओ ना, क्योंकि भगवान ने कहा ना, यद करो उसी यद अस्नासी, यह जो से ददाति सर। क्या कर सकते हैं, भगवान ने कहा ना दवाई खिलाओ। बोला अच्छा दवाई ठीक है, अगर मैं जूते लेके आऊं तो मैंने कहा जूते टेबल में रखो ना, भगवान को देखो ये तुम्हारे लिए भैया, प्रसाद देके मैं पहनूं। बोला ना करने का बहाना, ये नहीं करेंगे। तो ये भक्त लोग क्या करते हैं, ऑलवेज जो भी काम करेंगे हरितोषणम, और तब भगवान उनको और बुद्धि देते हैं। तेषाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम दम एन माम उपयांति थे। हम क्या करते हैं, हम सब खुद करना चाहते हैं, कुछ भगवान पे तो छोड़ो ना। भगवान के शरणागति हो जाए, बाकी भगवान देखे। जय भी दे राखे राम, से भी दे रहेंगे। दूसरे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये लोग जो है ना, दे चैंट एंड दे रीड, दे चैंट एंड रीड। एक बार बंसीदास बाबा जी के पास गौर और निताई थे, और उन्होंने झोपड़ी में रखा और कहीं चले गए। अब किसी ने क्या किया, उनके सारे बर्तन थे ना, सारे बर्तन उठा के चले गए। अब बंसीदास बाबा जी आए,
डीटी को बोलते हैं तुम इतना काम ही नहीं कर सकते हो, पहले 2 तो मेरे पास बर्तन थे वो भी चुरा दिए, तुम्हारा दिन भर खड़े रहते हो, इतना काम नहीं कर सकते हो तुमसे। और बोले देखिए ये काम नित्यानंद का है, तुम्हें भगवान की रखवाली करनी थी, तो आज अगर मुझे बर्तन मिलेगा तो तेरे को खाना नहीं मिलेगा, खाना सिर्फ चैतन्य को मिलेगा। और कई दिन तक उन्होंने खाना बनाते थे, नित्यानंद को नहीं खिलाते थे क्योंकि उसकी गलती होगी। तो क्या है, प्यार। और फिर कुछ दिन के बाद बर्तन और मिले, फिर बंसीदास बाबा जी कहते हैं नित्यानंद को, हाँ ऐसे काम किया करो वरना पनिश करूंगा मैं। यह है प्यार। तो भक्त जो है जो भी करेंगे भगवान की खुशी के लिए। अच्छा, हरि कथा सुनते हैं, अगर कोई आदमी ना मिले सुनाने वाला तो किताब से पढ़ते हैं, क्योंकि और किससे सुने जो प्रमाणिक गुरु न हो तो बेचारा क्या करेगा, नुकसान ही होगा। उसके बाद हम जो लोग हैं, हम लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छी सेविंग हो, बालों पे अच्छी सी डाई हो, फर्स्ट क्लास चश्मा हो, कपड़ों पे प्रेस हो, शानदार डीओ लगाया हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी प्रतिस्पर्धा है कि हम अच्छा दिखें, अच्छी सी धोती हो, फर्स्ट क्लास बिल्कुल ड्राई क्लीन की भी धोती हो, और समझ हम अच्छे हो गए। अरे भैया हमें अच्छा दिखना नहीं है, हमें अच्छा होना है। तुम्हारे बाह्य वस्त्र कैसे हों तुम पहचाने जाओगे अपने कर्म से, अपने वचन से। कल हम बता रहे थे कि हमारे हिंदू धर्म का जो पतन हुआ ना, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण यह है कि माथे पर तिलक नहीं, जिव्या में मंत्र नहीं, हाथों में शस्त्र नहीं, शिक्षा में धर्म नहीं, और मन में श्रद्धा नहीं। तो जब ये चीजें होंगी तो पतन हो ही नहीं होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर किसी एक कमरे में तुम 50, 60, 70 कुत्तों को इकट्ठा कर दो तो कुत्ता क्या करेंगे, भौंकेंगे ही, और भौंकने के बाद एक दूसरे को काटेंगे, यही होगा ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें बिहेवियर करना है लाइक ए डिवोटी। दूसरे में हम सब आप लोग इतना नहीं पता कर पाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, भौतिक में आध्यात्म में फर्क क्या है। हम समझते मैं जो कर रहा हूं वो सब आध्यात्मिक है, ऐसा तो नहीं है ना, कहीं ना कहीं जो है। आध्यात्म तब शुरू होता है जब हमारा देह आत्म साक्षात्कार खत्म होता है। जब आत्म साक्षात्कार हो तो भक्ति शुरू होती है। जब तक हमारा देह का देह का साक्षात्कार है तब तक भक्ति नहीं होती। इस प्रकार। और दूसरी चीज, ये जो बड़े बड़े डिवोटीज हैं ना, इनकी कथनी और करने में फर्क नहीं होता है। जो करते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। और हम लोग इतने शातिर हो गए हैं कि बोलने के लिए अच्छा प्रवचन करेंगे, ये है वो है, करेंगे नहीं। ये इसको बोलते हैं वाचो वेगम। और इस प्रकार हम कहते हैं रेनशिएट। जब आदमी के दांत टूट जाए, बोला यार मैंने मूंगफली खानी छोड़ दी है, या मैंने बादाम खाने छोड़ दिया, मैंने दांत अखरोट छोड़ दिया मैंने। अरे भैया छोड़े नहीं है, मजबूरी है तेरी। छोड़ा है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जिन्होंने बचपन से आम खाने छोड़ दिए क्योंकि गलती से बिना ऑफर किया वो आम खा लिया था। इसको कहते हैं रेनशिएशन। रेनशिएशन का दूसरा मतलब है कि हम कोई चीज न समझें इस पे मेरा आधिपत्य है या मेरे सुख के लिए बनाई गई है। रेनशिएशन आपने देखा होगा, इंडिया में आपने बड़ी बड़ी बारातों में गए होंगे, बड़ी बड़ी पार्टी अटेंड की होंगी। आप बोलेंगे बाकी सब अच्छा था, बस कोफ्ते में नमक नहीं था, बाकी सब बढ़िया था, तंदूरी रोटियां बहुत जली हुई थी, गाजर का हलवा में सब कुछ था, लेकिन उसमें जो है बादाम नजर नहीं आया मेरे को। यानी हम कुछ भी करने दुनिया में हम एक दो नुक्तों निकाले देंगे। और भक्त जो लोग हैं वो बड़े खुश होते हैं
कि आज भगवान की यही मर्जी थी। याद है आपको, मैंने सुनाया हुई कथा, एक बार सुदामा भगवान के साथ जंगल में गए, जब वो संदीपन आश्रम में थे, तो वहां उन्होंने देखा एक पेड़ है। सुदामा ने देखा पेड़ पे फल लगा हुआ है, तो भगवान कहते हैं कृष्णा मुझे भूख लगी ना, निकाल ना। भगवान क्या, इतना ऊंचा पेड़ है कैसे निकालूंगा, मैं चढ़ थोड़ी सकता। अरे बोले चढ़ने की क्या बात है, तो उछल ना। बोले उछलो, हाँ तो उछल सकता है। तो भगवान उछले, वो फल निकाला और उस फल के 4 टुकड़े किए। तो देखिए जिस प्रकार भक्त पहले भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान कृष्ण ने पहले ब्राह्मण को भोग लगाया। उन 4 फलियों में एक फली उसको दी, ब्राह्मण ने खाया, सुदामा ने खाया और फिर हाथ बना दिया कि एक और दे। भगवान ने कहा ठीक है, ब्राह्मण जो है देवता है, एक फली और दी। उसने पन्ना खाया, बिना चबा के खा लिया, निकल गया। फिर बोले एक और दो। भगवान ने तीसरी भी दे दी, वो भी निकल गया। फिर चौथी दो। भगवान ने कहा यार ब्राह्मण से भोजनम प्रिय है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं कुछ ना खाऊं। और सुदामा कहते हैं नहीं 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 नहीं, मुझे दो मुझे दो मुझे दो। भगवान ने कहा अरे एक तो खाने दो। तो भगवान ने जैसे मुंह में डाला फल थूक दिया, क्योंकि वो फल बहुत कड़वा था, बहुत कड़वा था। तो देखिए भक्त क्या कह रहा है कि अपने भगवान को कड़वा नहीं चाहिए, मैं खा लेता हूं, मैं तो प्रसाद दे रहा हूं, भगवान ने मुझे अपने हाथ से दे दो, प्रसाद है, मैं इसको क्यों ना लूं, हैं? लेकिन तुम मत खाओ। यह है भगवान के प्रति विश्वास। जब प्रभुपाद नए नए थे न्यूयॉर्क में, आई थिंक गोविंद दासी अब कोई खाना बना रही थी, तो प्रभुपाद जी किचन में गए और प्रभुपाद जी ने एक चम्मच उठाई और दाल को जो है चख लिया। वो लौटे थे, प्रभुपाद व्हाट यू हैव डन, वी डिड नॉट ऑफर। प्रभुपाद सेड इट्स ऑलराइट। तो उस दिन प्रभुपाद जी ने जो है सवरी का रूल निभाया कि मेरे भगवान को अच्छी चीज आनी चाहिए, झूठी हो चाहे कुछ हो, लेकिन अच्छी जानी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने सारा रोल निभाया है। तो प्रभुपाद जी ने सबरी का उन्होंने खाया, चखा, बोला इज ओके। तो भगवान और भक्त के बीच जो संबंध है बड़ा इजी संबंध है। विदुर बेचारे वो कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद हो मंडूक मुनि का, जो मुझे श्राप दिया कि मैं यहां हूं, नहीं तो बेचारे यमलोक में कहां कथा, कहां भक्तों के दर्शन, यहां के 100 साल तक बड़े आराम करूंगा। और फिर यही नहीं रुके, तन मन में भगवान थे, नहीं मुझे यात्रा पे जाना है। और फिर यात्रा गए, सारे देश का भ्रमण किया और भगवान की भक्ति से ओत प्रोत हुए। तो टाइम तो समाप्त हो गया है। अगर आप कहें तो भगवान कृष्ण कौन है, मैं आपको दिखाऊं? यस प्रभु जी। पक्का? और तुम्हारा कोई दूसरा प्रोग्राम है तो दूसरे प्रोग्राम कर लो। अगर भगवान कृष्ण प्लीज। अरे वो तुम लोग बहुत लालची हो यार, आप लोग इतने लालची क्यों बने? प्रभु जी आपने बनाया, भगवान के लिए लालच करना अच्छा है, भगवान के लिए। प्रभु जी तो भगवान के लिए, लेकिन यहाँ तो आप पीपीटी के लिए उतावले हो रहे हैं। यहाँ भगवान कहाँ है? तो वो लालची नहीं होते तो मेटल वर्ल्ड में क्यों आते हैं? तो लीजिए, ये सिनॉप्सिस है, पूरी चीज नहीं डिटेल है, लेकिन शायद है थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगे, पसंद आए। तो कहाँ चला गया? प्रभु जी कृष्णा का नियम है, आप देख रहे हैं? सब देख रहे हैं? हाँ जी जी प्रभु। तो कृष्णा अपने आप को 3 रूप में प्रकट करते हैं। पहला रूप है स्वयं रूप, दूसरा है तदेक आत्म रूप, और तीसरा है आवेश रूप। तो भगवान श्री कृष्ण इन रूपों में आते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो जब स्वयं रूप है उसमें भगवान प्रभव और वैभव
प्रभव वैभव रूप में प्रकट होते हैं। जब आपको दिखाई नहीं दे तो मुझे बता देना। इन प्रभव में भगवान रास लीला करते हैं, मथुरा लीला करते हैं, वृंदावन लीला करते हैं, द्वारिका लीला करते हैं, चैतन्य लीला करते हैं, अयोध्या लीला करते हैं, गोकुल लीला करते हैं, श्वेत धूप की लीला करते हैं। यह है स्वयं रूप के प्रभव का विवरण। उसके बाद वैभव में कृष्ण अपने आप को दिखाई दे रहा सबको, जी जी जी। अपने आप को बलराम या शेष या संकर्षण के रूप में एक्सपेंड करते हैं। ये जो बलराम और शेष संकर्षण हम कहते हैं, ही इज होल्डिंग द यूनिवर्स ऑन हिज हेड। इसके बाद जितने अनंत अनंत जो ब्रह्मांड हैं, ये सब उन्होंने अपने सर में उठा के रखे हुए हैं। उनका दूसरा काम है भगवान के कंफर्ट के लिए काम करना, जिसमें भगवान को जो है सुख मिले करना। और यही संकर्षण, शेष या बलराम, इनको आदि गुरु भी कहा जाता है। इनकी सेवा भगवान शिव करते हैं। उसके बाद वैभव में नारायण आते हैं, और नारायण में ये चतुर्भ्यू वसुदेव, केशव, नारायण, माधव, संकर्षण, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, प्रद्युम्न, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, पद्मनाभ आते हैं। और आगे वसुदेव हैं। जब कभी भगवान कृष्ण को कोई मारना हो या तारना हो, तो तब वह वसुदेव का रूप लेते हैं। कृष्ण रूप में कभी किसी को मारते नहीं है, लेकिन वसुदेव के रूप में अगर किसी को परित्राणाय साधूनाम विनाशाय तो दुष्कृताम, उस वक्त वह वसुदेव का रूप लेते हैं। उसके बाद प्रद्युम्न जो है, ये क्यूपिड की इनकारनेशन है। इनकी मां रुक्मिणी देवी है, और इनकी शादी रति से हुई, जो क्यूपिड के जमाने में इनकी पत्नी थी। अनिरुद्ध, ये ऊषा, यूएसए नहीं है, ऊषा है। ऊषा जो बानासुर की लड़की थी, जो बनी महाराज की पौत्री और प्रहलाद महाराज के पर पौत्री से अनिरुद्ध का विवाह हुआ। उसके बाद सॉरी प्रभु जी, शायद संकर्षण मिस हुआ शायद। No, he covered it. No, Sankarsana I covered earlier. Okay. In Swamsa, in Tadeka Atma Rupa, there is a Swamsa and Vilasa. In Swamsa, he takes Guna Avatar, Manavantra Avatar, Yuga Avatar, Purush Avatar, और लीला अवतार। ओके। इन गुण अवतार में ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, क्या बोलते हैं, पैशन, गुडनेस एंड गुडनेस। इसमें ब्रह्मा जी हैं, 100 साल का इनका जीवन है। इनके एक दिन में 14 मनु आते हैं, एक महीने में 420 मनु आते हैं, एक साल में 5040, और उनकी पूरी लाइफ टाइम में 50,400 मनु ये आते हैं और जाते हैं। दूसरे में प्रजापति हैं, सेकेंडरी क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। उसके बाद विष्णु, ये 700 साल जीते हैं, और इनका काम है जितने भी चल और अचल हैं सब चीज़ों का भार वाहन करना, इनको मेंटेन करना, इनको सुरक्षा देना, और जो भी काम है मेंटेन करना। लॉर्ड शिवा ये 4900 साल जीते रहते हैं। ये रेशियो 7 है। ब्रह्मा इंटू 7, विष्णु
and Vishnu is into 7 is Shiva. ये एनिलेटर हैं जीवों के और लोकों के, उच्च लोकों के, प्लैनेट के, एट डिफरेंट इंटरवल. दैट्स हिज जॉब. इन मानवंतर अवतारा, जैसे हमने भी बताया 14 मनु हैं, उनके नाम इधर है: स्वयंभू, सुरुचिसा, उत्तम, तमसा, रैवत, चक्षुषा, वैवस्वत. हम लोग इस वक्त वैवस्वत मनु के 28th मिलियन में. उसके बाद आएगा सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी और इंद्र सावरणी. ये हैं हमारे मनवंतर. ये मनु आते हैं और ये 71.2 मिलीनियम जो हैं. Yeah, 71.94. There is Dharma Shavarni missed. You need to add that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Dharma 9, 10, 11, 12, 13. Okay. All right. I'll add that. Thank you for informing me. Then, युग अवतार. सत्य में भगवान सफेद, त्रेता में लाल, द्वापर में काले और कली में पीले. सत्य में हंस, सुवर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा. ये अवतार हुए हैं सतयुग में. त्रेता में हुए विष्णु, यज्ञ, प्रश्नगर्भ, उरुकर्म, ब्रस्कवि, जयंत, उरुगाय एन सर्वदेव. और द्वापर में अकेले कृष्णाय हैं. और कली में आएंगे कल की. चैतन्य महाप्रभु है, लेकिन इनको हिडन अवतार कहा गया है, इसलिए ये हैं भी और नहीं भी. अचिंत भेद अभेद तत्व. उसके बाद पुरुष अवतार. कारणोदा, गर्भोदा, क्षीरोदा, या कारणदाक्षय विष्णु, गर्भोदाक्षय विष्णु, क्षीरोदाक्षय विष्णु. इन कारणदाय से भिक्षु जो हैं वो महाविष्णु भी कहलाते हैं. और इन ये जो हैं लॉर्ड ऑफ टाइम, लॉर्ड ऑफ नेचर, कॉज एंड अफेक्ट, माइंड एंड ईगो, सोर्स ऑफ 5 ग्रॉस एलिमेंट, मटेरियल नेचर और यूनिवर्सल फॉर्म, ये सब भगवान इनके द्वारा इनको प्रदर्शित करते हैं. गर्भदाय से विष्णु, मास्टर ऑफ वन यूनिवर्स. ये एक यूनिवर्स के जो हैं ये सर्वे सर्वा हैं, करता है. कंट्रोलर ऑफ ऑल दैट इज इन इट. जो भी एक यूनिवर्स में होती है, कोई भी चीज, चल अचल, जो भी है, अच्छी बुरी, सब इनकी ये मास्टर हैं, कंट्रोलर हैं. हमारे जहां हम रह रहे हैं 14 भुवन हैं, 14 प्लैनेट सिस्टम है. द रेडियस ऑफ आवर प्लैनेट इज 4 बिलियन माइल्स. ये किलोमीटर नहीं है, माइल्स हैं. 4 बिलियन माइल्स. इट हैज ओनली 84 मिलियन स्पीसीज ऑफ लाइफ. खाली 40 लाख, 84 लाख, 84 लाख यूनिया. In each species there are n number of जीवा. तो जो ये 8.4 मिलियन स्पीसीज जो हैं, इनमें एक में जो है अगर अनलिमिटेड नंबर वो है, जीवाज है, अनलिमिटेड. जैसे हजारों लाखों बकरियां और करोड़ों पक्षियां हैं, तो पक्षी लेकिन उसमें आते हैं. तो इस प्रकार ये है भगवान कृष्ण की अद्वितीय शक्ति. उसके बाद आया क्षीरोदाक्षय विष्णु. ये सुपर सोल है, परमात्मा है. और इंटर ये और एकम्पनी जी हर जीवा के साथ ये होते हैं, केवल या तो उनको गाइड करने के लिए या उनका साक्षी बनने के लिए. उसके बाद लीला अवतार. नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, हयग्रीव, हंस, प्रश्नगर्भ, नरसिंह, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, राम, व्यास, और ऐसे जो हैं सिर्फ करोड़ों में हैं, ज़्यादा नहीं है.
इन विलास, ये जो चतुर्भुज है ना, इनके अनेक सेट हैं. दे कम्स इन 1000 रिप्लिकेट. ये रिप्लिकेट होते रहते हैं. कभी इनके जो पोजीशन होती हैं, 4 हाथ हैं, कभी शंख इसमें, कभी चक्र इसमें, कभी गदा इसमें, कभी फूल उसमें, ये कॉम्बिनेशन होते रहते हैं. ये भी आल्सो देयर असंख्य है. उसके बाद आखिर में है आवेश शब्द. ये सब अपॉइंटेड हैं, अपॉइंटेड जीवाज. सुटेबल लिविंग एंटिटी आर ईदर empowered or promoted or authorized to do something very special for the well-being of humanity. ये सब ह्यूमन में आते हैं और किसी पशु पक्षी या उसमें नहीं आते. इस बोली वैसे इज ओनली ह्यूमन बीइंग. जैसे रसवदेव, परशुराम, बहुत सारे हैं, नहीं लिख पाता सब कुछ. और लोग कहते हैं मैनी इनकारनेशन एट टाइम्स आर पार्शियल अंसा और स्मॉल अंसा और अंश ऑफ दोज अंसा और हैव डेवलप गॉडली क्वालिटीज. कहते हैं मैनी प्रोक्लेम्ड दैट दोज हु आर बेस्ट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर एक्चुअली फॉल इन दिस कैटेगरी. And I'm happy to say, even Srila Prabhupada, Bhakti Vinod Thakur, 6 Goswamis or 7 Goswamis, ये सब they come in the category. Avesha, suitable divinity, and their work is only uplift the miserable condition in the human society. That's it. तो अब आपने समझा कृष्ण कौन है. ये जो है सैंपल है, हर चीज़ नहीं लिखी जा सकती है. ये सैंपल है. तुमने चाह आप समझें भगवान कृष्ण के बारे में, आप लोग जानें कि भगवान कृष्ण ने अपने आप को कैसे एक्सपेंड किया. और यहाँ तक कि हम भी भगवान कृष्ण के अंश हैं, लेकिन हम है नित्य बद्धा और हमें होना चाहिए जीवन मुक्त. नित्य भक्त जब हम जीवन मुक्त हो जाएंगे तब जाके हम नित्य सिद्ध हो सकते हैं. जीवन मुक्त का मतलब है कि फिर हमें दोबारा जन्म लेने का मौका नहीं मिलेगा या जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जन्म यानी भौतिक संसार में जन्म लेने के लिए. तो इस प्रकार आइए उस भगवान श्री कृष्ण को याद करें जिसके अनेक रूप हैं. और ये कहते हैं तस्याहम सुलभ पार्थ, आप मुझे आसानी से पा सकते हैं, बहुत आसानी से पा सकते हैं. कैसे? दिल में इच्छा हो तो एक होती चाह, दूसरी होती राह. अगर आपकी सही चाह है तो आपको सही राह मिलेगी, और आपकी चाह सही नहीं है तो राह गलत मिलेगी. तो ये अपने बुद्धि के विवेक को इस्तेमाल कर आइए भगवान श्री कृष्ण की वो गाथा गाएं, वो नाम गजें. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा.